One of the most coolest lawyers in the Delhi circuit. Most of us don't even want our parents to read our messages. Never. एक उनका वीडियो आया था कुछ साल पहले जिसमें वो हुक्का मार रहे थे. अब मैं क्या बोलूं? He was very outspoken, unfiltered. Who are the courts? Who are these fine 10 gentlemen who sit there in middle of Delhi to decide our fate? And the lawyer who speaks his heart. Law is not for lawyers alone. The law is only a reflection of things you study, reflection of ideas you have, reflection of everything that you've thought about the world should be. Who is popular for his opinions. Your right to free speech, your right to express your religion, your right to equality, your right to non-discrimination. The value of a democracy which is embedded in us through the parliament. अब आप हायरार्की में ऊपर जाते जा रहे हैं. पता नहीं, हाँ मुझे तो लग रहा है लग रहे हैं. जेएनयू का एक मैटर आया. Yes, sir. तब तक मैं जेएनयू के हायरार्की में भी ऊपर पहुंच गया. लोगों ने कहा चलो यार इसको ट्रस्ट कर सकते हैं. We had claimed that there were outsiders in the university, and clearly those groups showed that there was some kind of planning. और मैंने उन्हें बोला कि मैं जाके मिस्टर सिब्बल से बात करूंगा. कहते अच्छा. आप जानते थे उस वक्त? नहीं. हैं? हम सब जानते थे, टीवी से जानते थे. Confidence कहाँ से आया? And he is also one of the lawyers who is working as a junior to my favorite Mr. Kapil Sibal. So we would also get an insight in his life. Mr. Sibal is a larger than life figure for most lawyers, for me also. He's charismatic, enigmatic and intimidating. How I met Mr. Sibal is actually quite an interesting story. इस एपिसोड में हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, जैसे लॉयर्स की क्या-क्या परेशानियां होती हैं, what do they face and in their daily lives वो अपनी प्रैक्टिस कैसे बना सकते हैं. जैसे हम जानते हैं सस्टेन करना कितना मुश्किल होता है. एज अ लॉयर फ्रॉम अ दिल्ली बॉय यू बिकेम अ वेरी सीरियस बॉय. I mean, I pretended to. किस तरीके से मुझे काम करना है, सोचना है कि मैं कोर्ट को कन्विंस कर पाऊँ कि हमारे साथ गलत है. तो इन सब बातों पे वो हमें सॉल्यूशंस बताएंगे. बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे. द इश्यूज दैट रियली मैटर फॉर अ यंग लॉयर. मैंने कहा ये उनका नंबर आप पूछ लीजिए. तो ये मेरा जो है एक्सेस था. So we can read that as nepotism. So this episode is actually going to be very different and interesting and I hope आप सबको पसंद आएगा. We welcome here by Mr. Abhik Chimni. Hi sir, how are you? Hello, I'm good. Thank you for having me here. पहले तो मेरा सबसे first question यही था because I am a fanboy of Mr. Sibal and you work along with him. Of course. How is it working with him? उनके साथ काम करना कैसा होता है? No, Mr. Sibal is a larger than life figure for most lawyers. Yes, sir. And he was a larger than life figure for me also. In fact, over the years we've seen him as a minister, we've seen him as president of the bar. Yes, sir. We've seen him in press conferences and we've seen him in the courtroom and he's charismatic, enigmatic and intimidating. Intimidating. How I met Mr. Sibal is actually quite an interesting story. So I had gone independent. अच्छा. This is around 2017. So And I had started my practice, which was primarily in the Delhi High Court. when did you enter law? Sorry to cut you, but when did you? When did I entered law around 2012. Well, you started practicing. I started working in 2012. Okay. I initially didn't study law. I went to St. Xavier's in Calcutta. I studied sociology and political theory. I was interested in economics. So I did a degree in the social sciences. Then I worked a year as in risk assessment, financial risk, non-financial risks. And I realized that I need to be part of something bigger, part of something larger. I wouldn't be satisfied by limiting myself within a corporate regime. I wanted to be part of public life. And most importantly, I didn't want to start working at that time. I wanted to go back to college and have some fun. Okay. So that was important. I loved playing. I liked having a good time. So I went at that time, decided to apply and eventually joined Government Law College in Bombay. Okay, sir. So after I finished Yes, sir. my law in Bombay, and Bombay was a great time. I must say I didn't study much. Yes. I did a lot of reading and writing in Calcutta, which was the most important part of my education. Because when I was in Delhi, I lived in a bubble.
I was conventionally a Delhi boy who just wanted to have a good time, was infatuated by good things, and I was busy partying. And Calcutta really changed things for me. It St. Xavier's, the students, the teachers, the cultural heritage, it gave me reason to feel that I need to know things. I felt stupid, and I felt that all the bravado that Delhi sometimes gives you, and it has some great traits, but many of them are not things which are enough to fulfill me. तो मैंने कहा यार ये मैं दिल्ली का लड़का कब तक बने रहूंगा, मेरे को थोड़ी पर्सनालिटी में और भी कुछ ऐड करना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा लिखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए दुनिया के बारे में। इसलिए इतनी सारी किताबें भी ऐसी किताबें वो तो दिखाने के लेकिन ये ये मेरे दोस्तों ने मेरे बर्थडे पे दिया था। अच्छा। एंड he's a good friend of ours, and he gave it to me. Very cool. तो जब मैं गया कैलकाटा तो तब मेरे को आई वॉज ऑलवेज फीलिंग अनकल्चर्ड। तो मैंने कहा मेरे दोस्त वहाँ पे पढ़ते थे, लिखते थे, प्लेज में जाते थे, एंड आई सेड आई शुड रीड, और मैं लाइब्रेरी में बैठे रहता था आउट ऑफ प्योरली फीलिंग फूलिश। And that time I read everything: economic theory, philosophy, literature. I wrote, I read, I thought about the world around me. और मुझे बहुत पसंद आया, explored cinema, music, art. Generally वो 3 साल बहुत ही बढ़िया रहे। Because you're half Bengali also. Yeah, that was one of the reasons. Yeah. That I'm half Bengali and I'm half Punjabi. And so it was important to tap into the Bengali side, because my Punjabi side just wouldn't stop. So it wouldn't stop coming in. It wouldn't stop partying and having a good time. तो मैंने कहा ये बड़ा जरूरी है, आप जाइए, आप थोड़ा पढ़िए लिखिए, and जाहिल बनना बंद कीजिए. So I did that, and so Calcutta was foundational in my life. इसने बड़ा बदल दिया मुझे और जिस तरीके से मैं दुनिया को देखता हूँ. And it brought me closer to my parents or academics. Yes, sir. क्योंकि they were anyway alienated from me. Because in the sense they loved me, but they didn't realize ये क्या creature हमने create किया है. Being a conventional DPS South Delhi boy, they were like ये क्या है, ये क्या चीज़ है? है. So that was important. तो कैलकाटा ने बड़ा help किया. And law school में जब मैं गया तब मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी. And I again went back to having a good time. But by then, मैं वैसे I had become interested in generally reading and writing and thinking. And by then I also knew that I want to be part of something which involves institutions, which has something to do with how the public thinks, feels, to have some kind of impact. मेरे को वो चाहिए था. And तो जब मैंने लॉ खत्म किया, मेरी CV तो ऐसी थी नहीं कि tier 1 firm आके मुझे लेगी, because I hadn't prepared and planned. And that time I had entered litigation. I started working in the Supreme Court. I had joined at that time Dr. Rajiv Dhawan, and who was also Mr. Sibbal's junior. Correct. He joined Mr. Sibbal. He was, of course, a prolific thinker, and he was teaching in England. And वो जब वापस आए थे, and of course he himself comes from a very well-known family of lawyers and judges, and he came and started practicing with Mr. Sibbal. So I joined him, and it was an intimidating place. He knows so much, and he remembers them, and he's been a part of them. तो उनके साथ काम करना एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था. मैं बहुत सीखा उनसे. उनसे डर भी बहुत लगता है. यस सर. राजीव धवन साहब, तो वो आपकी तरह कूल भी है. एक उनका वीडियो आया था कुछ साल पहले जिसमें वो हुक्का मार रहे थे. अब मैं क्या बोलूं. वो उनका माहौल ऐसा वो बना देते हैं. हाँ सर. धवन साहब बल्कि कॉन्फ्रेंसेस में भी हुक्का पीते थे. क्या? एंड बहुत टाइम तक मतलब हमें लगता था कि it's something strange, but actually it wasn't a big deal. You said कि Rajiv Dhawan sir से, and you were with Mr. Sibbal, but you didn't get impressed by all of these things. The first day, let me go back and tell you कि मेरे को क्यों लगा मेरे को litigation करनी है. एक तो option नहीं था, like I said.
Option पर क्यों नहीं most था? आप अगर लॉ करते हैं हाँ और आज के टाइम पे हाँ the best minds are entering law and they start working from the age of 18 19 बेहतरीन internships journals में writing उनकी जो dedication है craft को the best of the best get jobs in top law firms. It's not easy and people put in a lot of work. तो मैं ऐसे ही टहलते हुए जाऊंगा तो कोई मुझे लेगा नहीं. You have to prove yourself. You have to be good at something. तो litigation जो field है वहाँ पे आपके avenues हैं, बहुत सारे वकील हैं, कोई ना कोई opening आपको शुरुआत में मिलती है जहाँ पे वो आपको allow करेंगे सीखना. And so for me that was an avenue I wanted to be in. Like I said, मेरे को public के बीच में रहना था. मैं चाहता था इंस्टीट्यूशनल काम में मैं इन्वॉल्व रहूं. एंड सेकेंडली मेरे को लगा नहीं कि मेरी सीवी अलाउ करेगी मुझे किसी टॉप लॉ फर्म में एक्सेस पाने के लिए. you so the family you come from nepotism तो ये रूमर फैलाया जा रहा है. माय फ्रेंड्स वोंट लेट मी एंजॉय माय हाफ बेक्ड सक्सेस. बट ऑन अ सीरियस नोट ऑफ कोर्स आपको पता है and most people know my father is one of the most I'd say important figures from South Asia in in international law. Of course he's given the Harold Bond lecture in Oxford. Yes, He gave the Grotius lecture organized by the American Society of Yes, International Law, which the likes of Stiglitz and Amartya Sen have given. He's published in every international law journal there is, and he's most importantly, he was important for third world approach of international law. He's one of the scholars who developed that. And he's a phenomenal academic, a phenomenal figure. And of course, my mother, she's again a phenomenal thinker, writer, और वो sociologist हैं. और वो दोनों इनफैक्ट जेएनयू में मिले थे 1970s में. एंड दे वर पार्ट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन. एंड तो मेरे घर में हमेशा पॉलिटिक्स की बात रहती है. एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स ब्रॉट मी अप इन दिल्ली. तो एक मुझे एक फाइनेंशियल प्रिविलेज हमेशा से मिला है. और माय फादर एंड मदर वुडंट से आर नेपोटिज्म इन द कन्वेंशनल सेंस दैट दे litigation की उसमें. हाँ कि आप वो मुझे आके बोल रहे हैं कि ये लीजिए ब्रीफ. क्योंकि लिटिगेशन की दुनिया बहुत अलग दुनिया है. हाँ वहाँ पे कल्चरल प्रिविलेज जो वो मिलती है आपको, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो मेरे को बहुत, उससे मेरे को मदद मिली है. तो सर जैसा आप अभी कहते थे टू कट यू, जैसे आप राजीव धवन सर के पास गए या यू वर्किंग विद मिस्टर सिब्बल, तो उसमें उनका कहीं हाथ नहीं था? मिस्टर सिब्बल के वहाँ नहीं हाथ था. राजीव धवन साहब प्रोफेसर थे. एंड मेरे फादर ने उन्हें बोला कि मेरा एक नालायक बेटा है तो आप रखेंगे. एंड आई फाउंड आउट लेटर दैट डॉक्टर धवन बड़ी स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है और मुझे कुछ नहीं आता था. एंड माय मदर यूज्ड टू से यू आर वेरी ब्रेव, यू आर क्लूलेस एंड यू आर गोइंग इनटू वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स इन मॉडर्न इंडिया. व्हिच इज ट्रू. धवन साहब से ज्यादा कोई कॉन्स्टिट्यूशन जानता नहीं है और ये सब मानते हैं. तो मैं आपको सच बताऊं, वहां पे मेरा, जब मैं गया, मेरा रोल कुछ नहीं था. मैं खाना ऑर्डर करता था. मैं आपको सच बता रहा हूँ. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी उस टाइम पे. मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस कपाडिया थे. एक सेबी सहारा इन्वॉल्विंग एक मैटर आया था जहाँ पे बड़ा फेमस पोस्टपोनमेंट डॉक्ट्रिन बना था. जो मुद्दा ये था कि अगर कोई मैटर सब जुडिस है तो उस पर रिपोर्टाज किस तरीके से होनी चाहिए और रिपोर्टाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. और अगर हो रही है तो क्या कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन है उसमें रोक लगाने की, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए. और डॉक्टर धवन उसमें थे. एंड वहाँ पे बहुत बेहतरीन वकील आते थे ब्रीफ करने. उनमें से सम आर टुडे सीनियर काउंसिल्स. एंड जब वो ब्रीफिंग होती थी और मेरे कंटेम्परेरीज भी थे काफी, एंड वो मेरे से माइल्स अहेड थे. उनको बहुत पढ़े लिखे थे. एंड आई वाज ऑफ नो यूज. I realized how I felt so small. Yes, sir. But I learned a lot watching these processes. जिस तरीके से लोग डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, डेडलाइंस, और आप काम कर रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं. इनफैक्ट मेरे को याद है मैं उधर 2 दिन था
not because of intellectual labor but more physical labor that I was putting in. और मेरी गाड़ी टो हो गई थी क्योंकि लोगों को लगा कि ये गाड़ी 2 दिन से खड़ी है तो पता नहीं क्या है। यस सर। तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में थे, उन्हें रिपोर्ट कर दी, मेरी गाड़ी ले गए हाँ। एंड मुश्किल से मेरे को फिर वो गाड़ी में को स्टेशन से आके लाए। बट वो एक्सपीरियंस जो था gave me great exposure to work at the highest level. Constitutional matter, constitution bench. जिस तरीके से ब्रीफिंग लॉयर्स काम करते हैं, जिस तरीके से सीनियर सोचते हैं, सुनवाई खत्म हुई 4 साढ़े 4 बजे, रिटर्न सबमिशन फाइल हुए 100 पन्ने के, उसी रात 6:30 7 बजे हमने कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करी कि दूसरी साइड ने ये कहा है, वो रिटर्न सबमिशन की रिसर्च कर रहे हैं जो हमें अब देना है, उस पे काम हो रहा है, वो लोग फिर प्रिंट कर रहे, रीड्राफ्ट कर रहे, करेक्शन कर रहे, 4 बज गए, सुबह 2 घंटे सोए, 7 बजे ठीक करे, फिर फाइल करी 3:30। ये जो चीजें हैं, ये चीजें जब मैंने देखी, मैंने कहा भाई मेरे से तो मतलब बड़ा मुश्किल लग रहा है। बट इंटरेस्टिंग मेरे को कभी लगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आया। और मेरे को बड़ा मजा आया देखने में कि इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इन कोर्ट। ये मेहनत जो 12-14 घंटे आदमी करता है, उसका रिजल्ट जो है बड़ा इंस्पायरिंग है कि आप इतने बड़े मुद्दों पे बात करते हैं, आप हाईएस्ट कोर्ट के सामने पेश होते हैं। ये चीज जो आज आप बहस कर रहे हो, हजारों लोग, लाखों लोग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो सीइंग constitutional matters at that level and seeing how the work happens gave me a lot of inspiration and also made me feel like this is where I want to be. I loved being in court. I loved the idea कि आपको argue करके जिताना है. The idea of winning by relying on your own ability, your conviction, your ability to think. वो सब मुझे बड़ा इंस्पिरेशनल लगा। मैं वैसे ही बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक आदमी हूँ, अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ, और मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं एम्पलीफाई कर सकता हूँ खुद को। इट्स अ पर्सनालिटी बेस्ड फील्ड, पीपल डोंट रियलाइज दैट इट्स अ पर्सनालिटी बेस्ड फील्ड, एंड that is something I really enjoy about litigation. And so from here you became, from a Delhi boy you became a very serious boy. I pretended to. I think it happened organically. Yes, sir. And it's something which I really love. I like thinking, which I discovered in St. Xavier, and this gave you a chance not only to think, yes sir, but to think about something and take it to a logical consequence. अगर मैं मानता हूँ कि मेरे क्लाइंट के साथ गलत हुआ है, तो वो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है कि मैं ढूंढूं कानूनी दौर पे कैसे उसकी मदद करनी है, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ, किस तरीके से मुझे काम करना है, सोचना है कि मैं कोर्ट को कन्विंस कर पाऊँ कि हमारे साथ गलत है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और सोचने की जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, आर्ग्यू करने की जो दे रहे हैं, उससे मेरे को बड़ा मजा आता है। तो बेसिकली आपको पहला प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली एज यू सेइंग सर की हेल्प से मिला। हाँ जी। देन फिर उसके बाद आपने अपना स्टार्ट तो कर दिया। डॉक्टर धवन के साथ मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहा, 6 महीने। उनके बाद मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टाइम रहा था। मैंने तब ज्वाइन करा था क्योंकि मैंने 12 में ज्वाइन करा, बार करीब 13 में आई ज्वाइंड मिस्टर पारस कुहाड़, एंड ही वाज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एंड जब उनको ज्वाइन करा, आप याद करेंगे 2013 में, it was 1 year before the elections. Yes sir. And scams और ये सब scams, UPA government was in great trouble. Yes sir. And Mr. Kuhad was relied upon a lot for some of the important matters. तो आपका जो coal matters था, आपके जो other privatization matters थे, amongst from other run-of-the-mill matters which were involving the state. There could be a PSU arbitration issue, there could be a pension issue, the way the armed forces function, direct, indirect taxation. But he was also part of the most important matters like coal. उधर मेरे को अगेन एक्सपोजर मिला कि किस तरीके से सरकार कोर्ट को अप्रोच करती है। तो जो आपके ब्रीफिंग्स होती थी, what were the views of the bureaucrats, file notings, how the state approached the case,
the difference in way the court may approach the state vis-a-vis a private party, ये सब मेरे को उधर बहुत सीखने को मिला. और मिस्टर कोहार्ड was a man of great detail. बहुत गहराई में बारीकियत से चीजें पढ़ते थे. हर क्लॉज पढ़ेंगे कि और ये क्लॉज कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे किसी और प्रोपोजिशन से जिससे मदद आए. हाउ डू वी फाइंड सम कॉन्ट्रडिक्शन, हाउ डू वी फाइंड a ground through details, something others have missed, which can then be used to win a case. तो and very hardworking. तो उनके साथ मेरे को एक तो eye for detail और दूसरा किस तरीके से सरकार litigation करती है, approach करती है. And in that time it was tumultuous. And I was in awe. I said the Supreme Court is truly a very powerful institution, because you're not used to seeing. I didn't have that kind of exposure. किस तरीके से highest level पे policy issues को deal किया जाता है, चाहे वो coal हो, चाहे वो spectrum हो. तो ये सारी जो exposures थी were तो यार बड़ी बड़ी जगहों पे काम करता है. यहाँ पैसे भी बड़े बड़े मिलते थे. अरे मैं आपको बताऊं कि ना बताऊं? बता दो सर, बताएं सर. लिटिगेशन में पैसे कम ही मिलते हैं, लेकिन सर ये बड़े ऑफिस है तो they were very kind. और उन्होंने जो पैसे उस समय में देते थे लोग दिए, और नो कंप्लेंट्स. बट क्या आपको लग रहा है कि हम कॉर्पोरेट सैलरीज मिल रही थी हमें, या वो नहीं है. वो नहीं है. और लिटिगेशन में होता बहुत कम है. एंड इनफैक्ट मैंने तो फ्री में काम किया उसके बाद, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करना चाह रहा था हाई कोर्ट में, मैं नेचुरली इंक्लाइंड था, क्योंकि मेरे दोस्त दिल्ली के हैं, मेरी जान पहचान दिल्ली के. मेरे को हमेशा लगा कोई छोटा चेक बाउंस का केस आता था, कोई रिकवरी हो गई किसी लिमिटेड कंपनी की ने प्रोडक्ट्स दिए, पैसे नहीं मिले, तो यू वुड कम टू द ट्रायल कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट. तो मैंने कहा मेरे को हाई कोर्ट का काम आता नहीं है, बिकॉज हाई कोर्ट का काम इज वेरी डिफरेंट इन द सेंस. हाँ, क्योंकि शुरू से सीखना है आपका. आपके पास कोई पास पन्ने लेके आ जाता है, आपको तो पता ही नहीं आपको सूट फाइल करनी है, रिट फाइल करनी है, कि आपको ट्रिब्यूनल जाना है, क्यों जाना है, आपकी प्रेयर क्या होगी. बेसिक्स प्रोसीजरल लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये बड़ी बड़ी बातें ठीक है, पर आपको आधे दिल्ली का जो कल्चर है आपको, या जो जनरल कल्चर है वकीलों का, कि मुद्दे के सिवाय हर चीज पे आपको हराने को तैयार है. आपने सर्विस नहीं करी, आपने अमेंडमेंट नहीं करी, आपके मेमो में फैलाना ठिकाना, उस प्रेयर में आपने ये नहीं मांगा, आप पहले उधर नहीं गए, आपने उससे बात नहीं करी. तो मैं तो पहले घबरा गया कि ये तो मेरे को बहस ही नहीं करने देंगे, पहली बार कर देंगे. तो मैंने कहा मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ, पर हमें बताइए कि भाई ये सब है क्या, कि जब मैं जाऊं मैं फंस ना जाऊं. क्योंकि मैं तो पहुंच गया स्कॉलरशिप करने, और वो पहले ही बोल दी कि सॉरी सर, यहाँ तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं, इतने आपके पेक्यूनियरी नहीं. कभी कोई कहते कि आपने जो पार्टी बनाई है वो ढंग से नहीं है, कभी कुछ समथिंग बेसिक. एंड सीपीसी इज होम to lots of these loopholes, and all procedure are, and it's not like it's wrong. It is important. It is very important procedure. In fact, in most cases, procedure is what saves you. In most cases, because rule of law is nothing but providing fair procedure for two parties to be heard. And therefore it sometimes feels scary, because a mistake here or there, a delay here or there can literally defeat your client's interest. But it's very important कि आप उनसे सीख लो, डरो मत. जैसे लोग मैथ से डरते हैं, लोग प्रोसीजर से डरते हैं. जो चीजें लोगों को समझ नहीं आती, या जो चीजें थोड़ी टीडियस लगती हैं, अजीब लगती हैं, हम घबराते हैं उन चीजों से. पर वो चीजें कर लेनी चाहिए. और नहीं हो रही तो कुछ नहीं हुआ, वकालत छोड़ दो और कुछ कर लेंगे. बट करना जरूरी है, क्योंकि वरना आपको पता ही नहीं है क्या, तो फिर करोगे कैसे. तो मैंने एक काम करा हाई कोर्ट में काफ़ी वकीलों के साथ, कभी 4 महीने इधर, 6 महीने इधर, 8 महीने इधर. एंड आई लर्नड अ लॉट. और फिर इवेंचुअली मैं इंडिपेंडेंट हो गए, which basically meant I was unemployed, and I said that but it's time I find employment for myself. इंडिपेंडेंट आप वैसे कौन से साल में थे? 17.
17 में ही आपको मिस्टर सिब्बल भी मिल गए थे। टू द ओल्डर क्वेश्चन जो बीच में रह गया। हाँ, तो 17 में क्या 17 में हुआ? आपको बहुत बेहतरीन साल रहा मेरे। मेरा मेरा बेहतरीन साल था। इनफैक्ट 17 में क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। मेरी मदर प्रोफेसर हैं हाँ और मेरे जेएनयू में बड़ा हलचल मच रहा था। हाँ वो आपको याद होगा फेमस केप का था कन्हैया का, 2016 में, यस सर। एंड इट बिकेम नेशनल हेडलाइंस Yes, एक्सेट्रा। एंड ऑफ कोर्स मैं कोई वो केस उनमें से कुछ कर नहीं रहा था और मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। मेरे को, हाँ, बड़े दिग्गज दिग्गज वकील थे, सीनियर लॉयर हैं, रेप्यूटेड लॉयर है। देखिए, जेएनयू वालों की एक बात है, उनकी जान पहचान सबसे रहती है। हाँ सर। करेक्ट, दे आर सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स यस सर। एंड सो दे नो आल्सो सम ऑफ द बेस्ट पीपल। यस सर। तो वो लोग अपना काम कर रहे थे। हम्म। तो एक छोटा स्टूडेंट का मैटर था हाँ और मेरे मदर को पूछा, एक प्रोफेसर थे, उनने पूछा कि अरे आपका बेटा भी वकील है, तो हमारे स्टूडेंट्स का मैटर क्यों नहीं करेगा? तो मैंने कहा हाँ, तो मम्मी ने नंबर दे दिया। बिकॉज माय पेरेंट्स द टाइप एंड आई हैव इनहेरिटेड, दे हैव नो एबिलिटी टू ask for something or the ability to promote and push, and they, I think, also somewhere look down upon it. So it's a weird space to be in when you're trying to build a practice, but it is what it is. Anyway, तो मैंने कहा ये उनका नंबर है, आप पूछ लीजिए। तो ये मेरा जो है access था, so we can read that as nepotism. So first access उन्होंने जो ये चिट दी उनको, उनने फोन करा, कहते ये 7 स्टूडेंट है, इनको देख लीजिए, ये मैटर है जहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, कोई रूल्स इनने बदल दिए। तो मैंने वो देखा मैटर और मैंने रिट पिटिशन फाइल करी और सिंगल बेंच के पास गई दिल्ली हाई कोर्ट में और मेरे को ऑर्डर मिल गया। ऑफ कोर्स दिस इज मैं जो पहले मैंने जब शब्द बोले तो मेरे को जज ने बोला कि तुम बोल के रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड आई रिमेम्बर दैट एंड अब मेरे को लगा कि बिकॉज आपको क्या है, एक आर्ग्यू करने का की मेथडोलॉजी होती है। हाँ वो भी लोगों को लगता है ये डिबेटिंग है, अरे बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अरे बड़े स्टाइल से बोलता है। yes. लोगों को लगता है ये चीजों से लोग प्रभावित होते हैं। देखिए, जो हमारे जजेस है बहुत सीरियस बिजनेस में है, वो रोज तय कर रहे हैं लोगों की जिंदगी। यस सर। वो बैठ रहे हैं ये तय करने के लिए कि हमें बताइए कानून में क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, आप मांग क्यों रहे हैं, और अगर आप ये चीज मांग रहे हैं, कानून कहाँ कहता है कि आप ये चीज मांग सकते हैं, आपका हक क्या है, और अगर हक नहीं है तो आपके साथ ऐसा क्या गलत हुआ है जिसके प्रति हम आएंगे। तो बड़ी उनके 3-4 सिंपल सवाल होते हैं। तो हम जो है शुरू कर देते हैं कि नहीं ये है वो है। तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स आई डोंट अंडरस्टैंड, वेरी एम्बैरेसिंग। तो दूसरे साइड ने कुछ बोला, फिर उनने मेरे को पूछा तो मैंने कुछ 2-3 बातें बताई। अच्छे डॉक्यूमेंट हमने लगाए हुए थे, तो मेरे को उधर ऑर्डर मिल गया ऑर्डर मिल गया। तो जेएनयू को ऑर्डर मिल गया। तो लोगों ने कहा अरे एक ऑर्डर मिल गया है, तो फिर स्टूडेंट के 2 और केस आए और तब आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन थिंकिंग अबाउट दिस थिंग्स, जो कोई नहीं करते हैं आजकल। बिकॉज कौन जून में किस छुट्टी पे, कौन किस गाड़ी पे आ जाता है, किसने क्या कपड़े पहन लिए, देयर इज अ ऑब्सेशन अबाउट मनी, एंड व्हिच इज नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। I like good things in life, yes, sir, but like you your can't office. make you can't. Yeah, I like my office. But you can't make a litigator's identity, a public profession's identity, money. You can't do it. It is absolute, and I don't say it for some point of cultural snootiness. I say that this is not how you judge people, and this is because most people who have money have 90% of the matters involving money are with 5% of the bar, and we know why. Yes. इसमें कोई वो नहीं है. It's not because ये सारे सब लोग God gifted है. Yes sir. Our institutions function in a way which make it difficult for people coming from outside, people who don't have privilege, चाहे वो financial privilege हो, cultural privilege हो, कोई आप क्या confidence की feeling देती है आपको privilege, किसी भी type का privilege हो, उन लोगों को अगर आप बताते रहोगे कि देखिए सूट बूट पहन के जब तक आपने 3000 करोड़ की आर्बिट्रेशन नहीं करी तो आप जो है
कानूनी तौर पे आपकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये जो मैसेज जाता है इससे आदमी फिर वो पैनिक में रहता है। आदमी कैसे करेगा, उसको आप बोलोगे वो करेगा भाई मैं कहाँ से पहुंचूंगा, which is something which is problematic. आप जब आते हो एंड देयर इज नो डिफरेंस। देखिए आप अगर सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन का करिए, आप 500 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है रिगार्डिंग द लॉ ऑफ HUF करिए, आपकी कोई शेयर होल्डर्स डिस्प्यूट हो, आपकी सेक्शन 7 हो NCLT में, आपकी कोई टैरिफ फिक्सेशन का मैटर हो एप्टल में, या आप कोई स्टूडेंट की मदद करने जाए, कानूनी तौर पे क्राफ्ट में कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि कई चीजों में पैसे ज्यादा मिलते हैं, कई चीजों में पैसे कम मिलते हैं, एंड दैट शुड नॉट बी द स्टैंडर्ड ऑफ जजिंग अ लॉयर। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्चुअली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर बार। मैं आपको सच बताऊं, जो सीनियर बार है दे शुड रिफ्लेक्ट एंड थिंक अबाउट व्हाट मैसेज दैट दे सेंड टू पीपल हु आर एंटरिंग दिस प्रोफेशन। बिकॉज अगर कोई इधर आता है, कमाता कितना है, 20-30 हजार को उनकी पहली नौकरी ज्यादा, हाँ कोई कहीं उससे भी कम। यस आप सुबह द्वारका में आपने पेशी करी, मेट्रो चेंज करके आप गए 30,000, 30,000 से आप खत्म करके चेंबर पहुंचे 4.5, 4.5 आपको कहीं आप किसी डिंजी बेसमेंट में वहां पे आपने कुछ चाय पी, फिर आपने अगले दिन के मैटरों की तैयारी करी, आपको बोला ये फाइल कर दो, अर्जेंट लिस्ट कर दो, आप 10-11 बजे तक, फिर आप किसी तरह अपने घर गए, घर मतलब जो आप रह रहे PG में या कहीं, वहां पे आप गए, सोए 12 बजे, 7 बजे खुले, ऑल फॉर व्हाट, फॉर 20,000। ये जो है अब इंसान, यू हैव टू गिव पर्सपेक्टिव टू हिम, and he has to be made to feel, forget money and all, but he has to be made to feel that you are a part of this profession, and to be an elite in this profession, to do well in this profession doesn't matter कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं। ये पैसे तो किस्मत की बात है, पैसे हमेशा कोई मेरिट की बात नहीं होती है। बहुत लोग पैसे कमाते हैं, मैं उन्हें कोर्ट में भी नहीं देखा हूँ आज तक, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर ये जो मैसेज है, obsession with money and success, it has to be talked about by those who have the privilege of already being there. They look up to those people, they look up to these seniors. अरे भैया आप आके अगर नहीं बोलोगे ये चीजें, तो जो है जूनियर बार पे एक इफेक्ट पड़ता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, गलत कामों में घुसते हैं, क्योंकि वो आदमी पैसा कैसे कमाएगा, उसे लगता है कि नहीं यार इस एज तक मेरे को 30 अंडर 30 बनना है, मेरे को भैया उस सबसे फैंसी होटल के आर्बिट्रेशन में जाना है, मेरे को भी ये गाड़ी लेनी है। और हमारा सिस्टम में पैसा जो आता है, आपको तो 50 साल में भी यंग सीनियर बनाते हैं, ठीक है, दैट्स द कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो वो कहते हैं तब तक तो मैं इधर टिक ही नहीं पाऊंगा, बट दे हैव टू बी टोल्ड कि इट इज that we respect people who think, who stand up for what is right, who believe in our institutions, that what you believe in matters. तो ये सारी जो चीजें हैं ये बड़ी important है, and I think that needs to happen. तो फिर वो बीच में कहानी रहेगी, वो कि 2017 में आपको ऑर्डर मिल गया। हाँ, ऑर्डर मिल गया, तो मेरे 3 और मैटर आए उस टाइम पे स्टूडेंट्स के। किसी की हॉस्टल इविक्शन हो गई, कोई फी हाइक हो गई, so on and so forth. तो मैंने वो मैटर करे, और मैंने बहुत मेहनत करी उस टाइम पे सोचने में, more than anything else, about, because the Delhi High Court is a fantastic court, and the judges there are some of the best judges you can appear before, and you know, it is a place where you can get relief provided you have a good case and provided you are able to factually show it. So I got some more orders. I got some more orders. Also, thanks to completely arbitrary actions by several universities, those orders were easy to get, because they were quite black and white. Yes, sir. And उसके बाद क्या हुआ, तो कोई टीचर जो स्टूडेंट है, तो फिर कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है, कोई आपके किसी की कोई प्रॉब्लम हो सर्विस में, वो आते हैं, फिर किसी और टीचर के पास चलेगी नॉन टीचिंग से, सो आई एम मूविंग अप द हायरार्की स्लोली। तो उन्होंने कहा ये है, मीनवाइल पैरेलली मेरे किसी दोस्त ने कह दिया कि यार ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये सूट फाइल कीजिए, या किसी की फैमिली डिस्प्यूट है तो वो HUF स्पिल हो जाता है, या किसी की कंपनी कुछ इंसॉल्वेंसी में हो, कोई बेल का मैटर हो, कुछ भी छोटी मोटी चीजें आना शुरू होगी। बट प्रीडोमिनेंटली एज आई स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स इन द हाई कोर्ट, it developed into
a lot of writ petitions within 2-3 rosters, especially the service roster. And remember, service roster glamorous roster नहीं है, correct? वहाँ पे आपकी पुरानी फाइलें, 1987 की नोटिफिकेशंस, 1994 की अमेंडमेंट, OMs, और कोई बेयर एक्ट नहीं है. All universities have ordinances and statutes. But जब आप फाइनेंशियल इश्यूज की बात करेंगे, उनकी पेंशन हो, पे कमीशन हो, प्रमोशंस, कार्डर, ये सारी जो चीजें, ये सारी कहीं डिफाइंड नहीं है. जैसे अगर आप उठा के कल आर्बिट्रेशन एक्ट देखेंगे तो यू विल नो, ओके, आई हैव टू फाइल अ सेक्शन 11, हियर आर द जजमेंट्स, सेक्शन 34, here are the judgments, for instance, or any statutory regime, income tax, even though income tax is a very convoluted, complicated regime, but उसमें already आप एक एक्ट है, उसकी कमेंट्री है, जजमेंट्स है, आप कर सकते हैं. सर्विस ऐसी चीज है जो आपको एक तो रिट ज्यूरिसडिक्शन देखना है फर्स्ट प्रिंसिपल पे, और ऊपर से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देखने हैं. और ऐसा नहीं है कि आपको बड़े पैसे मिल रहे हैं इन मैटरों के लिए, इन मैटरों के लिए, और आप स्टेट के खिलाफ है, जो वैसी मुश्किल है. और तो उसमें मेरे को बड़ा मजा आया, बिकॉज आई कुड सी आई एम हेल्पिंग पीपल राइट देयर. किसी की पेंशन नहीं मिली, आपने पेंशन दिलवाई. कोई गलत तरीके से उसको टर्मिनेट करा, हमने करवाया. कहीं किसी की प्रमोशन अटकी, वो हमने करा. सो बहुत जल्दी मेरे को उधर के मैटर्स आना शुरू हो गए, अक्रॉस यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और दैट गिव मी अ लॉट ऑफ वॉल्यूम. बिकॉज मैं उस टाइम पे मेरे को बस बहस करनी थी, मैं आपको बताऊं. तो फीस जो आए ना आए, मैंने कहा आप मैटर दो, मेरे को बहस करनी है. अच्छा. मेरे को बस पेश होना था. और विच इज हाउ इट शुड बी. अगर आप पेश नहीं होगे तो आप बेहतर वकील कैसे बनोगे? आप पेश नहीं होगे तो आप सीखोगे कैसे क्या सही है गलत है. एंड इवेंचुअली इट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू मनी, बिकॉज लाइक आई सेड, आई लाइक लिटिगेटिंग अक्रॉस फील्ड्स. जो मैं एक दिन में क्वेश्चनिंग भी आर्ग्यू करूंगा, कंटेम्प्ट भी आर्ग्यू करूंगा, एक 711 सूट का आर्ग्यू करूंगा, अगर पेंशन का मैटर है वो भी आर्ग्यू करूंगा. फॉर मी, आई डोंट बिलीव इन ऑल द स्पेशलाइजेशन. अगर आप वकील हो, आपको बेयर एक्ट पढ़नी आती है, तो अब भैया आप जाइए, रिलीफ लाइए, इसमें क्या है. तो सर अब आप हायरार्की में ऊपर जाते जा रहे हैं. पता नहीं, हाँ मुझे तो लग रहा है लग रहे हैं जाते हैं. तो फिर आप पहुंचते हैं मिस्टर सिब्बल के पास. हाँ. अब JNU का एक मैटर आया. yes, तब तक मैं JNU के हायरार्की में भी ऊपर पहुंच गया. लोगों ने कहा चलो यार इसको ट्रस्ट कर सकते हैं. yes, और मैंने उन्हें बोला कि मैं जाके मिस्टर सिब्बल से बात करूंगा. कहते अच्छा. आप जानते थे उस वक्त? नहीं है, मतलब हम सब जानते थे, टीवी से जानते थे. कॉन्फिडेंस कहाँ से आया सर आपके पास? मतलब हमेशा से था. इसे ब्रवाडो कहते हैं. अच्छा. थोड़ी बेवकूफी भी थी, बट मेरे को, मैं आपको सच बताऊं, हमारे बार में सिब्बल साहब जैसा आदमी है ही नहीं. वो तो है सर, है ही नहीं. सुई जेनरस, ही इज यूनिक. यस सर. और सिब्बल साहब को आप देखते तो ही तो ओनली पर्सन जो कॉन्स्टेंटली कुछ भी मुद्दा हो, हमें पता था वो आके बोलेंगे कि ये गलत है. तो आप गए उनके पास? मैं गया उनको ढूंढते हुए सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट में वो निकल रहे थे एक मैटर से एज यूजुअल, पीछे 10 वकील, और वो जल्दी में निकल रहे थे. 3:30 करीब थे, आई थिंक. नहीं, लंच के पहले था. एंड ही वाज गोइंग फॉर लंच एंड आई थिंक तब वो वापस आते बाकी मैटर करने के लिए. तो मैं उनके साथ चलना शुरू हो गया. आई सेड हाय सर, and I am so and so. He said, okay, now what is it? So I said that I am in some trouble. They're planning to apply a certain regime to universities. Teachers जो मेरे को नहीं लगता है लागू होने चाहिए, या कानूनी तौर पे हमारा केस जो है अच्छा है, पर हम चाहते हैं आप इसमें पेश हो. तो he said that's fine, where is it? I said कि ये दिल्ली हाई कोर्ट में. He said, you know, it's difficult, and I have so many matters in the Supreme Court. I said yes sir, we know, but let me come and at least brief you. आपको एक बार मिलने का मौका दीजिए. हम, बड़ा important मुद्दा है, हमें लगता है कि आप अगर रहेंगे तो it will be important, and we believe we need you, and that is why only we are bothering you कि आप please होना. So I kept talking. He said no, I don't know, tomorrow is full, this that. तो then निर्मल जी थे, मैंने निर्मल जी को बोला कि मैं कोई टाइम दीजिए. तो चलो ठीक है, इनको बोल दो 5 बजे. तो उस टाइम पे मैं कोई
I had just me and Sunil. I didn't have Sunil a ji, your junior. clerk. हाँ, and I didn't have a junior. हाँ, तो हमने फाइल उठाए and वन जोरबाग में थे सर. yes sir. और मैंने 3-4 प्रोफेसर बुलाए कि भैया आप आओ. हाँ, It's important, and they also said yes, we want to explain this to Mr. Sibal. And आपको अभी भी लग रहा था वो? मैं तो घबराहट में था, yes sir. पर मैंने कर लिया ये सर. yes sir. You know, I already taken that dive by then, too late. yes sir. Sink or swim. तो मैं पहुंच गया. हाँ, तो हम सिविल साहब के उधर पहुंचे और वहाँ पे लाइन लगी हुई थी लोगों की. और उनका दरवाजा खुलता है, Yes, हमें sir. बुलाते हैं. सिविल said, oh, you guys have come. How will I do it tomorrow? You know, sir ने बोला. And then he sat with us. And मैंने brief करा. I don't know briefing कैसी गई. और प्रोफेसर ने समझाया कि ये हमारी दिक्कत है. एंड मिस्टर सिबल सेड मैं बहुत मुश्किल में हूँ. आई डोंट नो हाउ आई विल कम टुमारो. देयर लॉट्स ऑफ मैटर्स, ऑल हिज मैटर्स आर इंपॉर्टेंट. यू नो हाउ इट इज. Yes, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट. yes sir. पर वो अगले सुबह सिंगल बेंच के सामने हाई पहुंच कोर्ट गए. में आए. ही सप्ली कॉल्ड में मी. था सर ये मैटर? सप्ली मैटर. अरे ही केम. उनने हमें स्टे दिलवाया. Yes, sir. ही आर्ग्यूड द मैटर एंड दैट्स हाउ आई फर्स्ट गॉट टू नो मिस्टर सिबल. एंड then after that, of course, I got to know him and we spoke to each other. And उसके फिर कई साल बाद, 3 साल बाद, by then I had gone independent. My practice had slowly taken up, and मेरे को मेरी बात हुई अखिल जी से. अखिल से Rakesh sir. And Akhil told me that do what do you think? Yeah. I think you will be good and you guys will get along. And to which I told him, the High Court, my practice is there and it's picked up and I have to be there. He said, that's fine, as long as you can make some आपने time. कंडीशन कैसे रखी सर? नहीं कंडीशन नहीं रखी. मैं तो सच्चा नहीं, मैंने कंडीशन रखी नहीं. Yes. मैं बता रहा था कि ऐसा ना हो कि because for me he's my hero. Yeah, me too, And sir. he's a hero. Yes, sir. For me. And तो कंडीशन की तो बात ही नहीं है. बट मैंने कहा कि ये है सिचुएशन. मैं डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हम, और कुछ भी हो. Yes sir. So he said, no, if you can take out time. And I asked my friends, and I said, कि this is the best thing that can happen. And I knew what I wanted to. but तभी दोस्तों से पूछ लेते हो. मैं ऐसे पूछ लेते हो, पता चल जाता है कौन गलत एडवाइस दे रहा है. तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा, this is an amazing opportunity. और मैं गया मिस्टर सिबल को मिलने. And of course he remembered. And then I associated myself with Mr. तो Sibbal. And आपके जो फ्रेंड्स होंगे उसमें आपका सर टोरा तो अलग हो गया होगा. और मतलब उसके बाद it to be part of his chamber is and I mean I can't appreciate it enough. It is How is he as a senior sir? Like he's calm, relaxed, great sense of humor. and when you mess up, how is he? He's like a teacher. Because he's doesn't shout, doesn't lose his temper. He's calm, he's relaxed, always in control, and he's magnificent. मतलब it's fantastic to work with. What आप जो सीखते हो जो मिस्टर सिब्बल से, 2 चीजें. एक जो वो इंसान है, how a lawyer should be brave, believes in the right values, ability to stand up against institutions and establishment जहाँ पे institutional establishment गलत है. ऐसे ही नहीं कि आप नारे लगाना शुरू कर दो. To want to protect the interest of those who don't have access to power and privilege. ये है जो चीजें मेरे को बड़ी impressive लगती है. वो अभी भी जैसे करते कोई भी प्रो बोनो मैटर. और दूसरी जो चीज है जो अब वकील सीख सकता है उनसे, कि वो किस तरीके से केस को देखते हैं, सोचते हैं. आप मिसेस सिबल के पास कोई मैटर लेके जाएंगे एंड ही इज हाउ लॉयर्स शुड बी. ही इज एबल टू डू एनी लॉ, any subject. That's because first principles run throughout all regimes. ऐसा नहीं है कि they're different in different regimes. There's some things that can happen and cannot. आप मुझे सिविल के पास कोई भी केस लेके जाओ, वो पहले बेयर एक्ट खोलेंगे. कोई जजमेंट, ये कमेंट्री, क्योंकि जजमेंट तो आप देखेंगे 10 चीजें इधर होंगी, 10 चीजें उधर होंगी, क्योंकि काफी चीजें एम्बिग्विटी में रहती हैं, इसलिए आपको जजमेंट लंबे देने पड़ रहे हैं. वो बेयर एक्ट खोलेंगे, पढ़ेंगे सेक्शन, फिर बोलेंगे आपके फैक्ट्स क्या हैं,
फिर he will think for a moment and come to a conclusion after that. Okay. Neatly with such great clarity then on conceptual basis said ये 2-3 आपके पॉइंट है, ये आपका बेस्ट केस है, इस तरीके से हम करेंगे. And direct, straightforward and also ability to cut the clutter. आप सिविल साहब से सीखते हैं 10 वॉल्यूम है, 20 वॉल्यूम है, और कईयों को होता है कोई ब्रीफ करने आता है उसे लगता है कि भैया ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ढूंढा है. आप समझ रहे हैं? तो वो बंदा 10 घंटे बेचारा रिसर्च कर रहा है, 4 बंदे बैठे, उनने कोई पॉइंट निकाला कि इस क्लॉज में एंड नहीं, इफ है, देन नहीं, दैन है, और उन्हें लगा कि भैया इसमें हम बताएंगे वी हैव टू टेक दिस पॉइंट. या किसी के साथ क्लाइंट के साथ प्रेजुडिस हो गया, क्लाइंट कहता है नहीं उसने बोला था मेरे को 5 करोड़ रुपए देंगे, उसने 2 दिए. And that could be true, but that might not be the basis on which you will get relief. The law may not be concerned with that fact. So Mr. Sibbal's ability to take out what the law is concerned with is great, because he is also not only technically such a great lawyer, concepts, provisions, but he has an understanding of society largely. Yes, sir. ये sociological perspective से देख सकते हैं कि भाई कोर्ट किस तरीके से इस केस को देख रही है. बेसिकली कोर्ट क्राफ्ट के माहिर. वो एडवोकेसी तो उनकी मतलब इट्स ही इज डिसआर्मिंग. आप देखेंगे कि वो आर्ग्यू कर रहे हैं एंड ही इट्स हीटेड मोमेंट एंड Then he द जज मे बी अगेंस्ट हिज क्लाइंट बट cracks his he whip. disarms them with a smile, Yeah. with a sentence, and it's amazing. And like One I said, thing that's that unique. nobody knows about him, like how is he in his personal life, because many people don't have this opportunity. So जो आपके I पास. think he's very generous. Yes, sir. बहुत ही generous है. हाँ. He's extremely democratic. जो उनका स्टैचर है पर्सनल As a लाइफ में, senior, मतलब ऑफिस में उनके कैसे माहौल रहता है सर? रिलैक्स्ड, Relax? ज्यादा ही रिलैक्स रहता है. ज्यादा ही रिलैक्स. सर सर तो बहुत लिबर्टी लेते हैं अपने कोलीग्स को, और वो कोई हायरार्की नहीं मानते. वो अपने कोलीग्स को एक किस्म से उनके साथ जब वो कोई मुद्दा डिस्कस करते हैं, चाहे कोर्टों में क्या हो रहा, चाहे राजनीति में क्या हो रहा हो, क्या आज के टाइम पे कोई जजमेंट आया हो या कोई ब्रीफ हो जिसमें उनको कुछ आर्ग्यू करना हो, तो वो अलाउ करते कि हाँ आपको क्या लगता है, वो सुनेंगे, यू मे अग्री नॉट अग्री, बट जो वो स्कोप देते हैं इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का, बातचीत का, काफी. मैं तो अभी भी घबराता हूँ, बट मेरे काफी कोलीग्स हैं जो बड़ा वेहेमेंटली बोलते हैं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई मुद्दे होते हैं, वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लार्जर मुद्दे हैं कि ये सही है. जैसे आपकी टेम्पल एंट्री का मैटर हो गया, या कोई और बड़ा जो डिस्कशंस होते हैं 370 का हो गया, या पॉलिटिकल डिफेक्शन का हो गया, जितने भी हैं उनमें ही अलाउज ऑफ कोर्स discussions and no hierarchy. For someone like him, you have to understand. I mean, Mr. Sibbal was one of the top lawyers before he even became a minister. That's true. So we are talking about the 90s and the 80s. Yes. There was a whole generation of 20 years who we have nothing to do with, who've seen Mr. Sibbal be one of the great lawyers of their time. Yes, sir. He went on to become a minister, came back, became SCBA president, and then for a whole new generation became one of the best lawyers you've seen in the country. that's If not, and for me, if you ask me, Mr. Sibbal in the last 40 years is the most influential Yes, lawyer we've had, because nobody has been able to affect the people's lives and the institution and how it should be the way he has. yes, sir. So मैं तो फैन हूँ, आप मेरे को पूछेंगे मैं बताते रहूँगा. Me too. हाँ. सर अब एक और बात है, आप कैसे एज ए सीनियर है, वो आप एक बार मैं बढ़िया हूँ, परफेक्ट. गुस्सा परफेक्ट. आप गुस्सा करते हैं सर अपने? मैं करता. करते? पर मेरा गुस्सा बड़ा शॉर्ट लिव्ड है. मैं देखो, आप मेरे कोलीग से पूछिए, दैट्स अ मोर डेमोक्रेटिक वे ऑफ डूइंग दिस. But I love my colleagues, Yes, sir. I must say, and I rely on them. तो कई सीनियर होते हैं बहुत पढ़ते हैं खुद, हाँ. मैं नहीं हूँ उनमें से. तो मेरे को conceptually मेरे को पता है कि कल ये मैटर है, हमें ये सारी चीजें जानना जरूरी है, and I rely on them a lot to do that work. जैसे कोई पिटिशन ड्राफ्ट होनी है, या कोई मेरे पास ब्रीफ आई है, आर्ग्यूइंग ब्रीफ आई है, तो मैं उन्हें कंसेप्चुअली बोल देता हूँ कि आप मेरे को स्टोरी बताओ एक बार, और फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि इस तरीके से या ड्राफ्ट बनाना है, या अगर जिसमें मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि मेरे को ये तरीका लग रहा है, ये प्रोपोजिशन बनता है कि नहीं बनता है, प्रेयर के लिए ये 3 डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, और
जो मैं वो 5-10 मिनट में मैं जो सोचता हूँ जरूरी है, they are able to do it all, so they're perfect. I have very lucky, I have some of the best colleagues that you can have, and सर as a ये कैमरे के लिए असलियत में भी असलियत में I'm very fond of them. उनका सिर्फ नाम लेने खुश हो जाएंगे। प्रांजल है, गुरु है, अयान है, मोक्षा है, and I'm very fond of them, and all my earlier colleagues also. Yes, sir. But I speak fondly of them because they've been there when my practice has kind of caught up a lot of Because of volume, and yeah, they've helped me a lot Yes, sir. in it, and I'm also trying to be generous, like I said कि Trying हम to लोग be generous. in not only see, I give them a lot of freedom. मतलब मेरा वो नहीं है कि अरे मैं बैठा हूँ तो आप भी बैठे रहिए, कोई फ्यूडलिज्म नहीं है। उनको मैं फ्रीडम देता हूँ, हमारी दोस्ती है, वो मेरे दोस्त की तरह है, चाहे सुनील हो, प्रांजल हो, गुरु, ऑल ऑफ देम वो मेरे दोस्त की तरह है। कि ऐसा नहीं है कि हाँ काम का मुद्दा है तो गुस्सा हो जाते हैं, वो भी मेरे से गुस्सा होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे कोलीग सुनील, ये मैं भी मेरे से गुस्सा होता है, ये लोग उल्टा मेरे को भी कहते हैं, बट इट इज अ इनफॉर्मल सेशन, एंड मेरे को बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देम आल्सो, एंड या व्हाट आई डू ट्राई टू डू इज Pay well. which is what I've learned कि जो अगर मैं उनको सैलरी देता हूँ जितनी, तो उसके अबव भी मैं दूंगा। कोई मैटर करते हैं या कोई क्लाइंट अफोर्ड नहीं करता है, मैं पूरा वो दूंगा जितना भी कर सकता हूँ। Yes, sir. I want to do. सर आपने एक अभी जब पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप एक अपनी फेलोशिप के बारे में बताए थे, वो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम जुलाई, एंड मैं अपने काफ़ी कोलीग से भी, दोस्तों से बात करे कंटेम्प्रेरी से, और मैं चाहता हूँ वो भी करे, बट मैं इनिशियली व्हाट इज अ स्मॉल थिंग, बट आई वांट टू गिव एटलीस्ट 20,000 a month to somebody who starts litigating in Delhi. I mean, preferably, of course, to a woman, or at least a candidate where we know that he would require the economic support. So personally, I want to be able to do this, and I want to be able to later, maybe I'm starting with one, and maybe later I'll make it 2 fellowships or 20, which I want to personally give. Okay, So if I can give 20 a month to one person, or I can give 20 a month to 2 people, and then along with that, I'm hoping कि मेरे ऐसे 8-10 जो क्लोज दोस्त हैं वो करें, और slowly at least this becomes institutionalized in some way, that we create space or some support कि बंदा 2-3 साल और रह ले, because you don't know क्या उसको वो 2-3 साल में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक्सेस मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सर आप इस पे अप्लाई कैसे करेंगे वो बता सकते हैं अगर आप? हाँ, so I am going to make form होगा, which I will publish, Google form? हाँ, a Google form where I will ask them the details, and the requirement is that you have got a job in Delhi, B, that you require that support which they can explain, and C, of course, the CV, which glorified CV? नहीं, मेरी खुद नहीं थी, मैं क्या glorified, तुक्के में खुद आए हम, and it's so till whatever time, हमें अपना भी थोड़ी ना पता है 5 साल बाद हम प्रोफेशन में होंगे नहीं होंगे। This profession you can't take it for granted, it's a very complicated space। फैक्ट्री नहीं है ना, जब आप परफॉर्म करना बंद कर दो तो क्लाइंट भी, मैं तो कह रहा हूँ परफॉर्म करोगे भी तो कोई पता नहीं। आप अगर देखोगे हमारे कोर्टों में, आप जजमेंट उठाएंगे, आप नाम पढ़ेंगे कि ये वकील कहाँ गए, आप किसी और को करेंगे, तो ये प्रोफेशन में कुछ पता नहीं है। ओके सर, इट हैज टू बी, दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ स्लो स्टडी करते रहो, एंड देन होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अपना भी नहीं पता है क्या होगा, कुछ नहीं पता रहता है। कई लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, एंड इट डज, बट एंड इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ वेदर यू आर गुड और बैड। You don't know how the institution and the market functions in a way that there is no guarantee of anything. Basically, it is a game of luck and not lot of luck, and that's why I don't understand. लोग तरक्की कर लेते फिर सारे यहाँ पे आइंस्टाइन बन जाते हैं। अरे यार, आप देखो बड़ी किस्मत होती है, आप अच्छा करते हो, हाँ आप वकील अच्छे हो, that's the basic, you have to be good, but बड़े talented लोग थे जो नहीं रह पाए। क्यों? उनको शादी करनी थी, उनको आगे बढ़ना था जिंदगी में, उनको स्टेबिलिटी अपने पेरेंट्स के लिए देनी थी। हम तो आपने शादी नहीं की ना? करवाना चाह रहे हो? यस सर। नहीं, आई एम वेरी, ये पॉडकास्ट देख के अगर कोई भेजना चाहे तो भेज दे, मेरा चैनल के नीचे कमेंट कर दीजिएगा।
नहीं मेरी माई लाइफ इज फुल, आई लव प्लेइंग, वो मैं फुटबॉल मिस नहीं करता हूँ, हफ्ते में 2 बार है, 3 बार है, अच्छा सर। एंड आई लव मीटिंग माई फ्रेंड्स। तो सर जैसे अब लॉयर्स की, अब मैं ऑलमोस्ट ये हर लॉयर का क्वेश्चन होता है सर कि जैसे आपने बोला कि 30,000 ही जा रहा है, कोई फिर आ रहा है फिर हाँ। 11 बजे, वर्क लाइफ बैलेंस का जो मैं हमेशा पूछता हूँ हर लॉयर से, तो इतना टाइम फुटबॉल खेलने का, ये सब करने का आपको मिल कैसे जाता क्योंकि मैं इधर पहुंच गया हूँ स्टेज में जहाँ मैं 10 बजे फुटबॉल खेल सकता हूँ, इट इज हैव कंट्रोल। तो मैं लेट खेलता हूँ पर मेरे पास वो कंट्रोल है कि नोबडी इज सेइंग आई एम नॉट वर्किंग ऑन एनी डेडलाइंस। व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ ऑन अंडर अदर पीपल्स अथॉरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम आपके पहले 5-6-7 साल। हाँ। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब आपकी थोड़ी ऑटोनॉमी आ जाती है फाइनेंशियली, उस टाइम पे आपको जो अपॉर्चुनिटी ऑटोनॉमी मिलती है उसे यूज कीजिए। तो अगर आप 10 बजे रात को आपकी इंपॉर्टेंट, आप खेलिए। फॉर मी इट्स एसेंशियल, आई कांट, फॉर मी टू प्ले अ स्पोर्ट, टू हैव टाइम टू रीड समथिंग, टू गॉसिप, आई एम अ बिग गॉसिप, टू गॉसिप विद माय फ्रेंड्स, टू गो आउट फॉर अ ड्रिंक, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीजों के बारे में बात Yes, करना, वो टाइम आप निकाल सकते हो व्हेन यू आर इन कंट्रोल। तब भी 100% नहीं है, यू आर स्क्वीज्ड। हाँ। 10 बजे तब भी आप जा रहे हो वो खेलने, खुद निकालना पड़ता आपको निकालना पड़ता है, पर फ्रीडम मिल जाती है आपको एक। सर। बट एज ए जूनियर, जैसे आजकल लोग होते हैं बहुत चीजें, जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ लोग पिकल बॉल खेलते हैं, कुछ बैडमिंटन खेलते हैं, हाँ, तो वो लोग कहाँ जाए एज ए जूनियर? और ये लोग आई थिंक ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। आई थिंक जैसे यंगर सीनियर्स आ रहे हैं एंड ऑल, दे अंडरस्टैंड ऑल दैट। अब तो आप देखो ये लोधी रोड में वही भाग रहे होते हैं सीनियर जो खुद, यस सर। बट द पॉइंट इज वो भाग रहे होते हैं क्योंकि जूनियर काम कर रहा है उसमें। तो जूनियर की लाइफ में वर्क लाइफ मुश्किल है, आई थिंक मुश्किल है, बिकॉज डेडलाइन बेस्ड है, सो इट डिपेंड्स ऑन लक। अगर एक ऑफिस में हो जहाँ पे आपको चलो संडे घर से कर लो, डोंट नीड टू कम, यस सर। बट अदरवाइज यू आर राइट, बिकॉज मोमेंट यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, तो यार मुश्किल ही है आपको, मतलब फ्रीडम। क्यों आप बोलोगे कि मैं थर्सडे 6:30 आऊंगा, आपके सीनियर ने कह दिया यार ये बेल जानी है 4 बजे, कैंसिल। ये है, ये दिक्कत है, क्योंकि द टाइम इजंट योर्स। अब देखिए कभी तो संडे को ही बुला लेते हैं। हाँ, जैसे आपने बुला लिया मुझे संडे। अरे सर, लेकिन सर वो तो संडे मैं काम नहीं करता, ऑफिस नहीं है। इट कुड बी कि मैंने कोई कॉन्फ्रेंस कर लिया कुछ, बट संडे को आई कीप ऑफ। मेरा रिचुअल है संडे, आई मीट माय फैमिली, आई हैव माय संडे गेम फॉर इयर्स, मैं मिस नहीं करता वो शाम को। आई आज ऑलवेज है सर वो आपका? आज है, और सो दैट इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ व्हिच आई हैव नाउ द एबिलिटी टू एंजॉय। टू द लास्ट क्वेश्चन सर, व्हाट, अब आपको प्रोफेशन में आई थिंक 10-15 साल, हाँ, मेरे को हो गए 13-14 साल। 13-14 साल हो गए। तो अब आपने इतना कुछ देख लिया, यू हैव वर्कड इन लाइक वन द टॉप ऑफिस इन लिटिगेशन, यू हैव वर्कड एंड यू हैव योर ओन प्रैक्टिस। तो आपने इतना देखा है, तो आप यंग लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि लाइक वन लास्ट एडवाइस यू वांट टू गिव कि वो इस करियर में कैसे चले? बिकॉज सर डिसहार्टन भी हम हो जाते हैं, जैसे पैसा कम मिल रहा है, छोड़ के चले गए, काम बहुत ज्यादा है, फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके लिए आप लाइक वन थिंग यू वांट टू एडवाइस देम एंड वन थिंग you also want the seniors to change कि मतलब ये ऐसा ना हो। You know, advice is see, all this advice, work hard, do your best, you know, it's generic, everybody says it, it means nothing. I assume they do it. You know, you have to assume they do it. I mean, there's no point telling them to do the obvious. मेरे को लगता है कि जब आप इस प्रोफेशन में आते हो, आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा, और कि आप और कुछ, मतलब कोई और ऑप्शन आपको पसंद नहीं है जितना ये पसंद है। एक आपको एक प्रायोरिटी देनी जरूरी है, क्योंकि जो मुश्किलें आएंगी फिर आप वो मुश्किलें झेलने को तैयार होगे, बोलने के लिए कि यार ठीक है मैं ये 5-7 साल धक्के खाऊंगा, पर उसके बाद अगर मेरी प्रैक्टिस जम जाए, और जमने का मतलब नहीं कि आप इंडिया के नंबर 1 वकील बन जाए, कि आप अपना रेंट दे पा रहे हैं, आपको अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना है आप खा पा रहे हैं, आप दोस्तों के साथ छुट्टी बना पा रहे हैं, धीरे धीरे उस स्टेज तक मैं आ सकता हूँ। तो आप ये सोच के चले कि हमें 6-7 साल मेरा ये एक इन्वेस्टमेंट है
ये एक स्टार्टअप है, ये एक बिजनेस है, और मैं ये 7 साल 6 साल दूंगा इसमें, और उसके बाद मैं सोचूंगा क्या हो ना हो। और उसके लिए तकलीफें होंगी, क्योंकि बोलेंगे यार ये तो सही है, एक बंदा दिल्ली में खुद रह रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, और वो बोल रहा है कि आप ये करिए। बट ये डिफिकल्टी जो है हमारे इंस्टीट्यूशन में डिजीज है, और इसका कोई राय, मतलब इसकी राय देने का फायदा नहीं है। दिस इज हाउ इट एग्जिस्ट। थिंग्स लाइक nepotism exists, things like low pay exist. Till that changes, you have to be able to find some way of finding the ability to stay. It may mean that you are able to get money through maybe doing something else on the side, but somehow sustain yourself for these for 6-7 years. It could be you teach somewhere, it could be something else. The additional 20,000 which gets over your salary. Yes, और फिर remember 3 साल की बात है, चौथे साल में वैसे ही आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। पर सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है कि आप अपनी जिंदगी में इसके सिवाय और कुछ करना नहीं चाहते, आपको मतलब इधर मजा आता है। अगर वो है that will last. If it is just a means to make money, तो नहीं होता, तो कोई फायदा नहीं है, because this is system is rigged. You don't make money, and then when you struggle, you'll see all these people, kids of so and so and so and so doing well, and the politicians and bureaucrats. Delhi is the capital to everyone who has power and money, and law is sexy now, you know. Everybody wants to be a lawyer because there's money in law. yes sir, And so in So, a but at a status of later the city, stage. but this city is attracting everybody who's connected to be to litigation. तो अगर आप आएंगे ये सब होगा, yes sir, और ये कल्चर बढ़ रहा है। तो अगर आप आ रहे हैं इधर, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये करना है, मैं ये 5-6 साल रहूंगा, और फिर शायद कुछ होगा। बट इफ इट इज ओनली अ प्लेस टू मेक मनी, देयर आर सो मेनी बेटर ऑप्शंस, Yes. एंड यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम With on the- this. And I wish the system was better. And like I put the blame on all those who've been in the system for the last 40 years for doing nothing yes sir, about it. And maybe they can't do anything. But till it changes, कुछ नहीं कर सकते. This is how I mean, litigation is market based है. Clients की खुद की मर्जी है. Free market है, मतलब free market तो नहीं है, because it's controlled, like I said, by people who are influential. In terms of access to briefs. licensing you're saying sir? I mean, वो भी है, but it is tough. तो मतलब इसमें पैशन बड़ा important component हो सकता है, क्योंकि फिर आप blindly धक्के खाने को तैयार हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये धक्के खा रहा हूँ, इससे मतलब थोड़ा खुद को रोमांटिसाइज कर लो, Yes, sir. because otherwise you know it's tough, it's difficult आपका to सर be here. ट्विटर अकाउंट है? नहीं हटा दिया मैंने। मैं क्या यार you know मैं सोशल आपको होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं था, नहीं because होना I'm impulsive. मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, and you have to be a bit serious. You're working in a serious profession, yes sir, and you can't. And I'm very reactive, because you know in our profession लोग बड़े, कोई सीधी बात नहीं कहता, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के, everybody is politically correct and formal and cordial, and even though they're all cutthroat and cutting each other's briefs and all of that, but बड़े फॉर्मलिज्म है, Yes, बड़े sir. पोलाइट है। Yes, sir. ऐसे नहीं, मतलब ये नहीं कि मोहल्लों में आप गाली गलौज कर लो जैसे। Yes, sir. वो बड़े तमीज से जो है ये चीजें करते हैं। आप क्या करते थे? मैं कुछ भी बोल देता था, तो मेरे को लगता दिक्कत है, होती थी सर उसके अंदर? मतलब हाँ यार, कई लोगों ने ट्वीट करा है कि ये कैसा वकील है, इनबॉक्स में ऐसे गालियां दे रहे हैं, या मैंने, सो आई हैव डन सम वेरी फूलिश थिंग्स, yes sir, and more than that, you know, I'm very opinionated. देखो मैं, I really believe in certain things, and I'm a political person. yes sir, And I think any lawyer says they're not a political person is strange, क्योंकि भैया you are part of a public institution which is deciding people's lives, and if you don't have a view on how people's lives should be decided, then I don't know what you're doing. So for me, it's important कि आप हो, and if you don't have a view, it's not a problem, because conservative institution and ऑलमोस्ट नेगेटिव चीज है कि आप पॉलिटिकल है, बिकॉज दैट मीन्स कि अरे आप एक साइड पे होने वाली बात नहीं है, आपके व्यूज तो होने चाहिए yes sir, कि प्रिजनर कैसे रहे, कि स्टूडेंट की ट्रीटमेंट कैसे होनी हो। चाहिए, कि अगर स्टेट ऑप्रेस कर रहा है तो आपके ख्यालात क्या है, क्या है? अगर आप किसी प्राइवेट एंटिटी को किसी ड्रैकोनियन टैक्स से तंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उन पर आप सवाल उठाइए। yes sir, But so because of those things, I have those views, I share them,
and you have to share them in a more informed way. ये social media में मैं बेवकूफों की तरह कुछ भी लिख देता था, and it was immature, and so I decided कि since I'm impulsive and unrestrained, I should not be there. If I have a view, I'll write it. Yes, sir. एक अच्छी तरीके से लिखे. लेकिन आप लोग को entertain करने का काम मेरे को नहीं करना. But you should be, because you speak your heart out, and that's what. So what happened? So how this podcast happened, I wanted to tell everyone. So me and my colleague Deepti, she's over here. So what happened, we were standing in the high court. So I was thinking of podcast पे किसको बोला, बहुत दिन से episode shoot नहीं हुआ. So I see you in the commercial side talking to someone. Like ये बढ़िया है. And because you were like speaking पता नहीं, you were talking about some issue which I really liked, and people were not people in courts are very formal, as you said, कि मतलब जो अंदर होता है वो नहीं बोलते, side की बात अंदर से. Like ये सही है. And that's why I thought that I should do this podcast. No, it should be. I think also people should not take themselves seriously. Yes, sir. You should be good at what you do. Respect the institution you work in. Respect your colleagues. But yeah, beyond the point, क्या फायदा है? Yes, sir. मतलब you have to also realize your small specks. Nobody here is winning the Nobel Prize. Yes. I know people think by interpreting a provision of law, they feel important, but यहाँ पे nobody is going to change the world. At best, you can help people, and you do it in a light-hearted manner. यार खुश रह के, मतलब क्या है थन में इतना seriously लेना. So thank you, sir, for agreeing Not to at all. doing this podcast. And sir, Happy can to you be here. tell to subscribe and like, comment? And You have to subscribe and like. have to. You have to. See, you have to help good people. तो आप please subscribe कीजिए, like कीजिए. Yes, sir. Especially मेरे podcast को. Thank you, sir. All right. Thank you, sir. Okay.